زرعی شعبے کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح. چھوٹے کاشتکاروں کو ریلیف کی فراہمی کے لیے حکمت عملی بنائی جائے. ٹیوب ویلز پر بجلی سبسڈی دینے کی تجویز پر مشاورت میں صوبوں کو شامل کیا جائے. ملک کی ترقی زرعی شعبے اور کسان کی خوشحالی سے وابستہ ہے. وزیر اعظم عمران خان. مودی سرکار کشمیری عوام پر بے پناہ ظلم کر رہی ہے. عالمی برادری انسانی حقوق کے کنونشنز کے تحت بھارت کو جواب دہ بنائے. حق خود ارادیت کے حصول تک کشمیری عوام کی حالت زار کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرتے رہیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا انقرہ یونیورسٹی میں آن لائن کانفرنس میں پیغام. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری. تازہ کارروائی کے دوران ضلع اسلام آباد میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا. نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا. علاقے میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل. تمام خارجی اور داخلی راستے سیل. جام چورو گرڈ اسٹیشن کے 132 kV سوئچ یارڈ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا. NTDC اور ہسکو کی ٹیمیں محض میں 2 گھنٹے میں آگ پر قابو پانے میں کامیاب. نیشنل گرڈ سے سپلائی بحال کر دی گئی. وفاقی وزیر برائے توانائی عمر ایوب نے ٹیموں کے فوری رسپانس کو سراہا. ملک بھر میں مزید 2,846 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق. تعداد 2,09,337 ہو گئی. مزید 118 افراد جان کی بازی ہار گئے. مجموعی طور پر 4,304 اموات، 98,503 صحت یاب. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقات. اراکین اسمبلی نے وزیر اعلیٰ کو اپنے حلقوں کے مسائل اور فلاح عامہ کے کاموں سے آگاہ کیا. کسی کو قومی وسائل کی لوٹ مار نہیں کرنے دیں گے. عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار. دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,04,00,000 سے تجاوز کر گئی. ہلاکتوں کی تعداد 5,08,000 سے زیادہ ہو گئی. 56,64,000 سے زیادہ صحت یاب. امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1,28,000 سے تجاوز کر گئی. کورونا وائرس کی عالمی وبا کا بدترین مرحلہ ہو سکتا ہے ابھی آنا ہو. ہمارا پیغام ہے ٹیسٹ کریں، ٹریس کریں، آئسولیٹ کریں اور قرنطینہ کریں. سربراہ WHO کی پریس کانفرنس. پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ ووسٹرشائر میں قومی اسکواڈ کو کووڈ-19 پر پروٹوکول اور تربیتی پلان کے متعلق بریفنگ دی گئی. ڈائریکٹر میڈیکل اینڈ اسپورٹس سائنسز ڈاکٹر سہیل سلیم اور ٹیسٹ کپتان اظہر علی نے کھلاڑیوں کو بریفنگ دی. Ele manda a bola pra frente, saiu jogando errado, que falha. Gol! تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سمینہ رانا اور میں ہوں آپ کے ساتھ علی جنت. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. ان خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
डेली पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। हर वक्त हर खबर से बाखबर रहने के लिए डेली पाकिस्तान वेबसाइट विजिट करें। घर, सफर, दफ्तर, स्कूल हो या कॉलेज, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। रिवायती खबरों से तंग आ जाएं तो मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए डेली पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान के रहने वाले, पाकिस्तान के देखने वाले, पाकिस्तान के पढ़ने वाले। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ज़राई शोबे का फरोग हुकूमत की तरजीह है। इस्लामाबाद में ज़राई शोबे में ट्यूबवेल्स पर सब्सिडी देने की तजवीज़ के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की खुशहाली ज़राई शोबे और किसान की खुशहाली से वाबस्ता है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि ज़राई शोबे के फरोग खुसूसन छोटे काश्तकारों को रिलीफ फराहम करने के लिए सब्सिडीज की तजावीज़ पर मुशावरत में सूबों को भी शामिल करके हतमी हिकमत अमली मुरतब की जाए। इजलास में वज़ीर तहफ़्फ़ुज़, खुराक और तहकीक सैयद फ़खर इमाम, वज़ीर तवानाई उमर अयूब, मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख और हुक्काम शरीक हुए। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की सदारत में इस वक्त जारी है। इजलास की कार्रवाई की तफसील मालूम करेंगे हमारे नुमाइंदे मियां मोहम्मद समी से। मियां मोहम्मद समी, बताइएगा कि आज के इजलास का क्या एजेंडा है। बजट तो गुज़श्ता रोज हमने देखा कि मंजूर कर लिया गया, आज की कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिए। जी, आज के जो इजलास है इसका जो एजेंडा है ये ज़िमनी बजट का एजेंडा है। ये बेसिकली कल बजट जो हमने मंजूर किया है, जो पिछले साल बजट मंजूर हुआ था और उसमें मुख्तलिफ वजारतों, महकमों और डिवीजनों के लिए जो पैसे मुख्तस किए गए थे, उनमें से बहुत सारी वजारतों, डिवीजनों और महकमों ने उससे ज्यादा अखराजात किए हैं। यानी जितना उनके लिए बजट एलोकेट किया गया था उनके अखराजात उससे ज्यादा हुए हैं। वो जो ज्यादा अखराजात हैं आज उनकी मंजूरी दी जाएगी और अभी इस पे आम बहस हो रही है। पहले अपोजिशन अरकान इस पे बहस करेंगे कि इन अदारों ने जो बैड बजटिंग की है ये नहीं होनी चाहिए। इस वक्त राना तनवीर हुसैन जो है वो इसी मौजू पे बात कर रहे हैं और इन अखराजात पे बात कर रहे हैं। ये 2019 और 20 के ज़िमनी बजट, यानी इसमें ज़िमनी मुतालबात ज़र जो है उनकी मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा आज के इजलास में साल 2009-10, 10-11, 11-12 और 13-14 और 2009-10 समेत ये 13-14 तक जो साल हैं इनके भी जो एक्सेस अखराजात हुए हैं उनकी भी मंजूरी दी जाएगी। तो इजलास अभी जारी है। इजलास में जब शुरू हुआ तो डिप्टी स्पीकर की सदारत में तो सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में जो कल एक बुज़दिलाना कार्रवाई हुई थी जिसमें 3 जो है वो एहलकार शहीद हो गए थे, उनके लिए, उनकी रूह के साले सवाब के लिए, शोहदा के लिए यहाँ पे फातिहा खानी की और मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने दुआ कराई और इजलास अभी जारी है। और ये आज जो ज़िमनी बजट है इसकी मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद बजट का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो। कौमी असम्बली इजलास से मुताल्लिक हमें तफसील में आगाह कर रहे थे मोहम्मद समी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाने वाले पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की शुजात को खिराज तहसीन पेश किया है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से बरवक्त कार्रवाई की गई है, जिसे सराहा जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर गुज़श्ता रोज दहशतगर्द हमले का मुकदमा कराची के सीडी थाने में दर्ज कर लिया गया है। नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, एक्सप्लोसिव एक्ट और कत्ल समेत दूसरी दफात शामिल की गई। मुकदमे में मुलजमान से मिलने वाली सब मशीन गन्स के नंबर दर्ज हैं। मुकदमा में दहशतगर्दों से कब्जे में लिए गए 2 मोबाइल फोन्स का इंदराज भी किया गया। पुलिस के मुताबिक कब्जे में लिए गए मोबाइल फोन्स में से एक मोबाइल फोन एंड्रॉयड जबकि एक सादा मोबाइल फोन था। गुज़श्ता रोज स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले में 4 दहशतगर्द मुकाबले में मारे गए थे, जबकि हमले में 1 पुलिस ऑफिसर और 3 सिक्योरिटी गार्ड शहीद और 2 सिक्योरिटी गार्ड समेत 6 अफराद जख्मी हुए थे। पाकिस्तान ने स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि इस बुज़दिलाना हमले को बैरूनी इमदाद हासिल थी।
पाकिस्तान पहले ही रॉ के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने का सबूत दे चुका है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक हमले में मुलव्विस 4 दहशतगर्द मारे गए और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हमला नाकाम बना दिया। तर्जुमान के मुताबिक ये हमला पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी रियासती दहशतगर्दी की एक और मिसाल है। भारतीय क़यादत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दहशतगर्दी को आलाए कार के तौर पर इस्तेमाल करने के बयानात देती रही है। स्टॉक एक्सचेंज हमले से मुतालिक भारतीय वजारत खारजा का बयान एक इनकार के अलावा कुछ नहीं है। भारत के झूठे दावे पाकिस्तान में इसकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को छुपा नहीं सकते। पाकिस्तान आलमी बरादरी को भारतीय क़यादत के धमकी अमेज बयानात से मुसलसल आगाह करता रहा है। आलमी बरादरी हमसाय ममालिक को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत की रियासती दहशतगर्दी का फौरी तौर पर नोटिस ले। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले पुलिस एहलकारों की हिम्मत हौसला अफजा रही। पुलिस एहलकारों ने साबित किया है कि वो खतरे का सामना करने की सलाहियत रखते हैं। आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि वो शहीदों को सलाम पेश करते हैं और हमले में जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। चीन ने पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है और शोहदा के लवाहिकीन और जख्मियों से हमदर्दी का इजहार किया है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम में पाकिस्तान की हिमायत करता है और हर किस्म की दहशतगर्दी की वाज़ेह तौर पर मजम्मत करता है। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाना ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अमरीकी सफारत खाने ने कहा है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और इस वाक़े में मुलव्विस अनासर को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के इक़दामात में पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े हैं। भारत की जानिब से हस्बे साबिक एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मसमूम और मकरू कोशिश भारत अपने तौसी पसंदाना अज़ाम के बायस अपने हमसाया मुल्कों के साथ कभी खुशगवार ताल्लुकात कायम नहीं कर सका। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले के बाद चोर की दाढ़ी में टिंके के मुस्ताक भारतीय सेंट्रल एजेंसीज ने मकबूजा जम्मू कश्मीर, बिहार और दिल्ली में थ्रेट वार्निंग जारी की है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कालादम तंजीमों के 5 से 6 दहशतगर्द दाखिल करने की झूठी साजिश तैयार की गई है, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जानिब भारत की मकरूह साजिश का वाज़ेह इशारा है। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरी अवाम की हालत ज़ार को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करते रहेंगे। तुर्की की अंकारा यूनिवर्सिटी में कश्मीर इलाकाई और बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर के उन्वान से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर ने कहा कि हिंदू बालादस्ती कायम करने वाली मोदी सरकार कश्मीरी अवाम पर बेपनाह मज़ालिम ढा रही है। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों पर होने वाले मज़ालिम का इतराज़ करे और इंसानी हुकूक के कन्वेंशन के तहत भारत को जवाबदेह बनाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत के अज़्म से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। कॉन्फ्रेंस से आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर मसूद खान, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर लॉर्ड नज़ीर अहमद और अंकारा में पाकिस्तानी सफ़ीर ने भी खिताब किया। मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। सुल्तान अलाउद्दीन और शाम की शहजादी की शादी बहुत अहमियत की हामिल बंदूक। उन्होंने ऐलान किया है कि शहजादी से होने वाली औलाद ही तख्त की वारिस होगी। तुम ये काम खत्म करके यहूदा के साथ जाकर आर्तुरुल को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दो। मुझे इल्म है कि यही दुख मुझे हकीकी फतह की तरफ लेकर जाएगा। अब अगर कोई चचा पे शक करेगा या उनके खिलाफ बात करेगा तो मुझे भी अपना मुखालिफ पाएगा। कुर्तुगलू और उसकी हवारी मुझे सरदारी से हटाना चाहते हैं और बंदूक को सरदार बनाना चाहते हैं। तुम्हें और किस पर शक है? कुर्तुगलू
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला इस्लामाबाद में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौज ने नौजवानों को जिला के इलाके वघामा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। भारतीय पुलिस ने दावा किया है कि शहीद होने वाले नौजवान अस्करियत पसंद थे जो भारतीय फौज की 3 राष्ट्रीय राइफल्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ झड़प में मारे गए। ताहम नौजवानों की शिनाख्त नहीं हो सकी। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में फौजी कार्रवाई जारी थी। काबिज हुक्काम ने इलाके में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी और इलाके के तमाम खारिजी और दाखिली रास्तों को बंद कर दिया है। रवां माह के दौरान जनूबी कश्मीर में जारी फौजी कार्रवाई में भारतीय फौज ने 36 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। आगे बढ़ते हैं। एनटीडीसी के 500 केवी जामशोरो ग्रिड के 132 केवी स्विच यार्ड में अचानक फ्लैश की वजह से लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। तर्जुमान पार डिवीजन के रात लगने वाली आग के बायस हेस्को के इलाकों में बिजली मुतासिर हुई। एनटीडीसी और हेस्को की टीमों ने तकरीबन 2 घंटे में ही एनटीडीसी का पूरा 500 और 220 केवी का सर्किट बहाल कर दिया। कराची को नेशनल ग्रिड से सप्लाई इब्तदाई ट्रिपिंग के फौरन बाद बहाल कर दी गई है। हेस्को का बिजली तकसीम का निजाम भी काफी हद तक बहाल हो चुका है और सार्फिन को इस वक्त बिजली की फराहमी जारी है। पावर डिवीजन ने तमाम वाक़े की इब्तदाई टेक्निकल रिपोर्ट तलब कर ली है। विफाकी वज़ीर पावर जनाब उमर अयूब खान पूरे बहाली के ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी करते रहे और इस वक्त भी बहाली के निजाम को मॉनिटर किया जा रहा है। विफाकी वज़ीर पावर ने एमडी एनटीडीसी, सीईओ हेस्को और मौके पर मौजूद तमाम टीमों की काविशों को सराहा। गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में मजीद 2,846 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 118 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 2,09,337 हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर 4,304 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासरा अफराद की 75,501 तादाद बताई जा रही है। सिंध में 81,985, बलूचिस्तान में 10,426, खैबर पख्तूनख्वा में 26,115, इस्लामाबाद में 12,775, गिलगित बल्तिस्तान में 1,470 और आज़ाद कश्मीर में 1,065 तादाद बताई जा रही है। अब तक मुल्क भर में 98,503 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। नाज़रीन, जिस तरह से हम रोजाना की तादाद पर अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कोरोना के मरीजों की तादाद है उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ हद तक कमी आई है, लेकिन अभी आज की अगर तादाद की बात की जाए तो आज 2,846 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है माहिर नफ्सियात डॉक्टर प्रोफेसर फैसल रशीद साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के लिए। हम देख रहे हैं कि जो रोजाना की बुनियाद पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसकी तादाद में तो कमी वाक़ई हो रही है, लेकिन जो WHO की जानिब से बयान सामने आया है कि अभी जो इसकी एक और वेव है जो कि ज्यादा मुतासिरकुन हो सकती है, हो सकता है वो सामने आए, तो आप क्या समझते हैं इस सूरत हाल में हम और अवाम अपने आप को पुरुमीद कैसे रखें? देखें, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो कोविड है, कोरोना है, ये तकरीबन 1 से 2 साल तक मौजूद रहेगा, ये कहीं नहीं जा रहा। वैक्सीन आने में भी तकरीबन 1 साल लगेगा। हमने इस दौरान अपने आप को तैयार करना है। हमें जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वो अपनानी है। ना हम लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं, ना हम इस डिनाइल में रह सकते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये सब फॉल्स है। तो हमें मास्क पहनने, हमें लोगों से फासला रखना है, हमें अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के कारोबार भी चलाने हैं, लेकिन हमें हाथ भी वॉश करने हैं। हमें हाथ धोने की ये जो प्रैक्टिस है इसको इंटरनलाइज करना होगा, इसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। हमारी आज तक ये तरबियत नहीं हुई, हमें आदत नहीं है, हम सीट बेल्ट नहीं पहनते,
हम साफ पानी इस्तेमाल नहीं करते, हमारे स्कूल्स में वॉशरूम्स नहीं हैं, लेकिन हमें अब इस तरफ जाना होगा जहाँ पे हमें अपने एटीट्यूड यानी अपने बिहेवियर्स में, अपने रवैयों में तब्दीली लानी होगी। मुश्किल है, लेकिन हाँ, उम्मीद है हम सब इससे निकल आएंगे। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना है कि कितना टाइम लगता है कि एक ह्यूमन ब्रेन को नई चीज एक्सेप्ट करने में, क्योंकि जिस तरह का एटमॉस्फेयर है पाकिस्तान में और जिस तरह की प्रिवेलिंग सिचुएशन है, इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह के रुझानात पाए जाते हैं सोसाइटी में, ऐसे में इन रुझानात को और जो मनफी असरात हैं उन्हें कैसे कम किया जा सकता है? जी, वक्त लगता है। जो इंसानी रवैये हैं वो एकदम तब्दील नहीं होते। हमारा मुआशरा खास तौर पे जहाँ पे सेहत के बारे में, बीमारी के बारे में तो तालीम दी जाती है, लेकिन सेहत के बारे में तालीम नहीं दी जाती। ऐसे रवैयों को तब्दील करने में टाइम लगता है। लोगों को ये समझाना कि मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है, लोगों से फासला रखना क्यों ज़रूरी है, जहाँ आबादी इतनी ज़्यादा है, गुंजान आबाद इलाके हैं, वहाँ पे आपने फासला कैसे कायम रखना है, इन चीज़ों में टाइम लगेगा। हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही हमारे तालीमी इदारों की जिम्मेदारी है, हमारे मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो इस रुझान को परवान चढ़ाएं, वो एजुकेट करें लोगों को। तनकीद करना काफ़ी नहीं है, लोगों को एजुकेट करना। और लोगों के बिहेवियर, रवैये एकदम तब्दील नहीं होते। आप किसी भी इंसान को कहें तुम आज स्मोकिंग छोड़ दो, सिगरेट पीना छोड़ दो, लोग नहीं छोड़ते। वक्त लगता है, लोगों को इंगेज करना पड़ता है, लोगों को। और फिर मैसेजिंग बहुत ज़रूरी है। आप किस किस्म का पैगाम दे रहे हैं? पैगाम सिंपल होना चाहिए, पैगाम साफ होना चाहिए कि ये आपने करना है और ये नहीं करना। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के रवैये फिर तब्दील होते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर फैसल रशीद साहब, माहिर नफ्सियात, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और उनकी जानिब से ये कहा गया कि छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करके हम अपने आप को ये बता सकते हैं कि अब हमें कोरोना वायरस के साथ ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होगा। और कोरोना वायरस के बाद जो एक सूरत हाल सामने आई है, इसको न्यू नॉर्मल का नाम दिया गया है। तो इस न्यू नॉर्मल में खुद को एडजस्ट करने के लिए वो तमाम चीज़ें, वो तमाम SOPs, वो तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। और ख़ासतौर पर इसमें जो एक बड़ी अहम बात अली डॉक्टर साहब ने की वो ये कि हमें अपने रवैयों को तब्दील करने के लिए खुद पर मेहनत करनी चाहिए। तो उसके बाद न्यू नॉर्मल में खुद को एडजस्ट करना कदरे आसान हो जाएगा। कहा आपने। और जैसा कि इससे पहले हम बात कर रहे थे, WHO की जानिब से जो बात की गई है, नया बयान सामने आया है कि एक नई वेव आ सकती है, एक नई लहर का आना अभी बाकी है शायद। तो ऐसे में अपने आप को क्वारंटाइन करना है और आइसोलेट करना है, और जितनी ज्यादा मुमकिन हो सके इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर हमें एहतियात करनी है। एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, क्योंकि जब तक, जैसा कि डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, जब तक वैक्सीन की दरियाफ्त होती तकरीबन उसमें टाइम लग सकता है। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन उससे पहले जो जिम्मेदारी हम पर आयद होती है उसे हमने भरपूर तरीके से पूरा करना है। और इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर हमें अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से निभानी है। इस पर हम बात करेंगे। माहिर नफ्सियात डॉक्टर रिजवान ताज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले हम बात कर रहे थे कोविड-19 को लेकर सोसाइटी में जिस तरह के रुझानात पाए जाते हैं, आपकी नजर में सर इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर हम पर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं? देखें, ये मसला अब काफी पुराना हो चुका है, काफी महीने इसको गुजर चुके हैं। पाकिस्तान की जो कौम है वो बड़ी सख्त, उनकी जो ताकत है उसमें काफी ज्यादा है, और वो हर तरह के मसले से निपटना जानती भी है और कर भी सकती है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि अब लोग जो है काफी हद तक इसको एडजस्ट हो चुके हैं, और वो अपनी जिंदगी को जो बिखर गई थी उसको समेट रहे हैं और नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और काम वगैरह सब कुछ सिलसिला शुरू हो। आहिस्ता आहिस्ता ये जो मुश्किल वक्त का आखिरी फेज है ये भी खत्म हो जाएगा, हम सब अपनी मामूल की जिंदगी में वापस आ जाए। लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम जिम्मेदारी से काम लें, और बहुत जरूरी है कि हम जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर काफी ज्यादा अमल करें, और किसी किस्म के खतरे अपने आप को, अपने अहले वयाल और खास तौर पे बच्चों को ना दें। तो वो चीजें अभी चलती रहेंगी, लेकिन उसके अलावा आप अपनी जिंदगी को नॉर्मल समझें, नॉर्मल तरीके से गुजारें, और इस तरह के उस बेहतरी लाएं। जो कुछ आपने पिछले 3-4 महीने में देखा उसको साइड पे कर, और आगे के 3-4 महीने की प्लानिंग करें।
ये इस वक्त बेहतरीन मशवरा है। अभी खतरा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है लेकिन खत्म नहीं। तो जो आपने दूर रहना है, मास्क पहनना है, बाहर कम से कम जाना है, वो चीजें कायम रखें और बेहतरीन से जाना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि अभी इसको टाइम लगेगा लेकिन इस सारी सूरत हाल के साथ खुद को ढालना होगा। मैं बात करना चाहूंगी हमारे बुजुर्गों की। हम अगर एसओपीज को फॉलो नहीं करते, वो लोग जो एसओपीज को फॉलो नहीं करते, बाहर भी जाते हैं, अपने मामूलाते जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, फिर घर जाते हैं, तो अगर उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है लेकिन बुजुर्गों की नहीं है, आप क्या हमारे नाज़रीन को कहना चाहेंगे कि आपने अपने बुजुर्गों को महफूज रखने के लिए खुद को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का आदी बनाना है? इस हवाले से कोई पैगाम दीजिए। जी बिल्कुल। इंसान रोटी कमाता है अपनी फैमिली के लिए ताकि उसकी फैमिली हिफाजत से रहे और सुकून से रहे और उनके बेसिक जो जरूरियात हैं वो पूरी। अगर हम अपने बुजुर्गों की और बच्चों की हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर हम बहुत गलत करें। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि आप जो घर का शख्स बाहर जाता है और उसकी मजबूरी है कि वो बाहर जाता है क्योंकि उसने रोटी भी कमानी है, तो वो जरूर अपने आप एहतियात करे, अपने मास्क पहने और हाथ धोए, दो चीजें बस वो ही पूरी करे और दूसरे लोगों के करीब ना आए। तो वो अगर अपने आप को हिफाजत करेगा तो उसकी घर वाले भी हिफाजत में रहेंगे। और बुजुर्गों का तो हमारे कल्चर में, हमारे दीन में, हमारे माशरे में बहुत बड़ा मुद्दा। हम तो बुजुर्गों की खातिर सब कुछ करने को तैयार हैं। ये तो हम उनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को समझें और अपने बुजुर्गों और बच्चों की और घर वालों की हिफाजत करें कि हम बाहर से जरासीम घर में ना लाएं कि वो बड़े बूढ़े जो भी हैं वो उसका शिकार हो जाएं। और आपको पता है कि जो अफवाह होती हैं या जो डेथ्स होती है वो सारे बुजुर्गों से ही, ज्यादातर बूढ़े लोगों में होती है। इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि हम जिन बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनसे दुआ मांगते हैं और वो हमें दुआ देते हैं और वो कबूल भी होती है, हम उनकी हिफाजत करें और वो हमारा जो सपोर्ट है वो किसी तरह भी हटे। सही। डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं जानना चाहूंगा कि जो कोविड के पेशेंट्स हैं, देखने में आया है कि उनसे हमारा रवैया भी थोड़ा मुख्तलिफ होता है। अगर किसी में इस तरह के सिम्टम्स पाई जाती हों तो देखने में आया है कि उनसे भी थोड़ा सा रवैया मुख्तलिफ होता है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जो पेशेंट्स हैं उनसे किस तरह हमें अपना रवैया रखना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, एक मरीज है, उसको एक बीमारी है, वो तो हमदर्दी के काबिल है, वो उससे नफरत या और तरीके से, बुरे तरीके से उस पर नजर डालना किसी भी एतबार से मुनासिब नहीं है। और ये तो हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है कि मरीज की हमने एक्स्ट्रा केयर की। तो बिल्कुल ये गलत है। तो बिल्कुल किसी तरह भी ऐसे ना समझा जाए कि वो अछूत है या ऐसे कोई बात है, बिल्कुल ऐसा ना समझा जाए। ये हमारा कल्चर भी नहीं है, हमारा दीन भी नहीं सिखाता। तो डेफिनेटली वो अगर उसको मर्ज है तो उससे वो एहतियाती तदाबीर तो करनी पड़ेगी कि हमें उससे दूर रहना पड़ेगा, उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, उसको उसकी हर चीज अलग रखनी पड़ेगी। और बच्चों को बिल्कुल आपने बजा फरमाया है डॉक्टर साहब के जो पेशेंट्स हैं उनके साथ जो है वो अच्छा रवैया रखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखने में आया है कि वो लोग जो इन्फेक्ट हो जाते हैं इस वायरस से, वो इसको उस तरह से बताते नहीं हैं या छुपा लेते हैं। शायद उनको इस चीज का एहसास नहीं होता कि एक जो पेशेंट है जो इन्फेक्ट हो चुका है इस वायरस से, वो और कितने लोगों को ट्रांसफर कर सकता है। तो इस रवैये को भी तब्दील करने की कितनी जरूरत है, क्या कहेंगे आप? जो आपने बात की है ये इसी वजह से पैदा हुई है कि हमने उनको मुख्तलिफ तरीके से देखा, हमने उनको मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट किया जिससे वो घबरा गए। तो ये तो मरीज जो जिसको ये मर्ज लाहक होता है वो तो बहुत खतरे का बाइस होता है बाकियों के लिए। तो उसको बताना और उसको अपनी एहतियात करना और दूसरों को अपने से हिफाजत में रखना इंतहाई वक्त की जरूरत है। उससे तो इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। बिल्कुल।
صحیح، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر رضوان سعد صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور ماہر نفسیات پروفیسر ڈاکٹر فیصل رشید صاحب اس پر بات کر رہے تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے مختلف اجزاء سے تعلق رکھنے والے اراکین صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں غیر ضروری اضافہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. سردار عثمان بزدار نے کہا کہ اراکین اسمبلی میرے ساتھی ہیں اور ان کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ منتخب نمائندوں کی مشاورت سے ہی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے پروگرام پر عمل درآمد کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سابق حکمرانوں نے صوبے کے عوام کی اصل ترجیحات کو نظر انداز کرتے ہوئے ذاتی نمائش کے لیے منصوبوں پر قومی وسائل استعمال کیے. انہوں نے مزید کہا قومی وسائل عوام کی امانت ہیں اور ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا خیانت ہے اور کسی کو قومی وسائل کی لوٹ مار نہیں کرنے دیں گے. عوام کا پیسہ عوام پر ہی خرچ ہوگا. اس موقع پر اراکین اسمبلی نے نامساعد معاشی حالات میں بہترین بجٹ پیش کرنے پر وزیر اعلیٰ کو مبارکباد پیش کی. انہوں نے اپنے حلقوں کے مسائل فلاح عامہ کے کاموں کے بارے میں بھی آگاہ کیا ہے. پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور سے صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک نے ملاقات کی ہے. گورنر ہاؤس لاہور میں ہونے والی ملاقات کے دوران گورنر پنجاب نے کہا کہ بجٹ کی منظوری پر وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم مبارکباد کے مستحق ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں جبکہ اپوزیشن کا ایجنڈا احتساب رکوانے کے سوا اور کچھ نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اصولوں اور نظریے کی سیاست کر رہے ہیں اور احتساب کے عمل سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. چودھری محمد سرور نے کہا کہ اپوزیشن کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا رویہ ترک کرنا چاہیے. ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت ملک کو درپیش معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور کورونا کے خلاف جنگ حکومت اور 22 کروڑ پاکستانیوں کی جنگ ہے. گورنر پنجاب نے کہا کہ ماسک سمیت دیگر حفاظتی اقدامات سے بھی کورونا سے بچا جا سکتا ہے. صوبہ پنجاب میں آج رات ہونے والے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد نئی حکمت عملی ضروری ادویات کی قیمتوں اور سپلائی. کراچی میں دہشت گردی کے بعد سیکیورٹی انتظامات کے جائزے کے لیے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان اور چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا. اس موقع پر چیف سیکرٹری پنجاب نے کہا کہ ڈپٹی کمشنرز اپنے اضلاع میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے علاقوں کو سیل یا کھولنے کا فیصلہ کر سکیں گے. انہوں نے کہا ڈپٹی کمشنرز اضلاع میں کووڈ-19 کے علاج میں استعمال ہونے والی ادویات کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے کم از کم 4 فارمیسیز میں مریضوں کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 سے زائد بھی فارمیسیز کو نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ عوام کی آگاہی کے لیے 24 گھنٹے کام کرنے والی ان فارمیسیز کی میڈیا میں تشہیر کی جائے گی. سیکرٹری ہیلتھ نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ صوبے بھر میں ضروری ادویات کی کوئی کمی نہیں ہے اور پلازما بیچنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے. آئی جی پنجاب نے بتایا کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملے کے بعد صوبے بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے اور تمام حساس مقامات پر پولیس کی اضافی نفری تعینات کی جا رہی ہے. چیف سیکرٹری نے ہدایت کی کہ فیلڈ افسران شہروں سے 12 مویشی منڈیاں لگانے کے لیے جگہوں کی نشاندہی کر کے رپورٹ بھجوائیں. اجلاس میں کمشنر لاہور ڈویژن آئی جی پنجاب اور ڈویژنل کمشنر سمیت متعلقہ افسران نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی ہے. پنجاب کے اسپتالوں میں او پی ڈیز اور آپریشن تھیٹرز کو مکمل فنکشنل کرنے کے لیے حتمی پلان طلب کر لیا گیا ہے. صوبے میں سرکاری اسپتالوں اور کورونا کے حوالے سے اقدامات کی تفصیل بتائیں گے صادق بلوچ اپنی اس رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے محکمہ صحت کو 10 روز میں او پی ڈیز اور آپریشن تھیٹرز مکمل فنکشنل کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ہسپتالوں کے او پی ڈیز اور آپریشن تھیٹرز فنکشنل نہ ہونے کی وجہ سے صوبے کے مریضوں کو پریشانی کا سامنا ہے، اس لیے انہیں فوری طور پر بحال کیا جائے. انہوں نے کہا کہ صوبے میں مؤثر اقدامات کی وجہ سے کورونا کا پھیلاؤ روکنے میں مدد ملی ہے. سردار عثمان بزدار نے حکام کو ہدایت کی کہ میڈیکل سٹاف کے لیے تمام تر حفاظتی اقدامات بھی کیے جائیں. جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے صدر نور خان بھابھا اور جنرل سیکرٹری علی رضا دریشہ کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی. ملاقات میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام، سیاسی معاملات اور جنوبی پنجاب کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. سردار عثمان بزدار نے کہا کہ اب جنوبی پنجاب کے فنڈز کسی دوسرے شہر اور منصوبے کو منتقل نہیں کیے جا سکتے.
ایک بیان میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات ہماری انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے۔ کورونا کی وجہ سے ملک کو چیلنجز درپیش ہیں، اس لیے اپوزیشن جماعتیں بھی کورونا پر سیاست سے گریز اور SOPs پر عمل کریں۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس میں سرکاری ہسپتالوں کے آؤٹ ڈورز اور کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اب عام مریض سرکاری ہسپتالوں کے آؤٹ ڈورز میں علاج معالجے کے لیے جا سکتے ہیں۔ حکومت نے کورونا اور عام مریضوں کے لیے آؤٹ ڈورز الگ الگ کر دیے ہیں۔ صادق بلوچ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا ہے کہ ڈھوک حسین گیس فیلڈ کوہاٹ کو SNGPL لائن سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ گیس فیلڈ سے SNGPL کو روزانہ 12 ملین کیوبک گیس کی فراہمی کل سے شروع ہو جائے گی، جس سے خیبر پختونخوا حکومت کو رائل 1 ارب روپے کی آمدن ہوگی۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت صوبے میں قدرتی وسائل سے استفادہ کرنے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کے تحت کام کر رہی ہے۔ منصوبے کی تکمیل نہ صرف صوبے بلکہ ملک کے لیے بھی ایک اہم پیش رفت ہے۔ رائلٹی کی رقم کو علاقے کی تعمیر و ترقی پر خرچ کیا جائے گا۔ اور یہاں تذکرہ کریں گے کورونا کے عالمی منظرنامے پر اثرات۔ ناظرین، دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ 4 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور 5,07,000 سے زائد افراد اس مہلک وبا کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 56,46,000 سے زیادہ ہے۔ کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک امریکہ ہے، جہاں وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد 1,28,000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے اور مریضوں کی تعداد 26,80,000 کے قریب پہنچ گئی۔ امریکہ کے بعد کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک برازیل ہے، جہاں مریضوں کی تعداد 13,68,000 سے زائد ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 58,000 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ روس 6,41,000 سے زائد کیسز اور 9,000 سے زائد ہلاکتوں کی وجہ سے تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ بھارت 5,67,000 سے زائد کیسز اور 17,000 کے قریب اموات کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ برطانیہ کی بات کی جائے تو برطانیہ میں بھی کورونا وائرس سے 43,000 سے زائد مریض ہلاک، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 3,11,000 سے زائد ہے۔ اور دوسری جانب عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس کی عالمی وبا کا بدترین مرحلہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آنا ہو۔ WHO کے سربراہ ٹیڈروس ایڈہام نے سوئٹزرلینڈ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومتوں نے درست پالیسیاں نہیں اپنائی تو کئی گنا مزید افراد اس مرض کا شکار ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پیغام ہے کہ ٹیسٹ کریں، ٹریس کریں، آئسولیٹ کریں اور قرنطینہ کریں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق دنیا بھر میں اب تک 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اس مرض کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اور ان میں سے آدھے کیسز یورپ اور امریکہ میں سامنے آئے، تاہم اب یہ وبا شمالی اور جنوبی امریکہ میں تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اب بھارت اور چین کے درمیان مشرقی لداخ میں سرحدی تنازع کے حوالے سے کشیدگی بدستور قائم ہے، جبکہ بھارت کی جانب سے فوج کی نقل و حرکت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع گاندربل میں تمام سرکاری اور نجی اسکولز کو فوج کے لیے خالی رکھنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ بھارت کے ایک معروف انگریزی اخبار نے حکومتی ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ بھارت نے چین کے ساتھ سفارتی اور فوجی سطح پر بات چیت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم عسکری جواب کے لیے بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں لداخ کی گلوان وادی میں چینی فوج کے ہاتھوں بھارتی فوج کی درگزر اور اپوزیشن کے سخت رد عمل پر بھارتی حکومت دباؤ کا شکار ہے اور اب بھارت نے عوامی غم و غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹک ٹاک سمیت 59 موبائل ایپس پر پابندی عائد کر دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے پیر کی شام ایک حکم نامے کے ذریعے ٹک ٹاک، شیئر اٹ، کلب فیکٹری، UC براؤزر، وی چیٹ اور ویگو لائیو سمیت 59 چینی ایپلیکیشنز پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مودی حکومت نے ان چینی ایپس پر پابندی لگاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بھارت کے اقتدار اعلیٰ اور اس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ پابندی ایک ایسے وقت میں لگائی گئی ہے کہ جب بھارت اور چین کے درمیان لداخ خطے میں رواں ماہ کے وسط میں ایک خون ریز جھڑپ میں 20 بھارتی فوجی مارے گئے تھے۔ دوسری جانب نیپال کے وزیر اعظم
पी ओली ने इल्जाम लगाया है कि भारत उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए मंसूबा बना रहा है। केपी ओली का कहना है कि नेपाली पार्लियामेंट में उन्हें अक्सरियत हासिल है और उन्हें इक़्तिदार से हटाने की भारत की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकेगी। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म का ये ताज़ा बयान दोनों पड़ोसी मुल्कों के ताल्लुकात में बढ़ती हुई खलीज की अलामत है। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर भारत ने फिलहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। बढ़ेंगे मजीद कौमी खबरों की जानिब। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशा खबर रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, जबकि मुसलसल अदम हाजिरी पर नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एहतसाब अदालत के जज सैयद असगर अली ने तोशाखाना रेफरेंस की समाअत की। आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक इशनाइक ने एक बार फिर कोरोना वायरस की वजह से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दी। अदालत ने आसिफ अली जरदारी की मुसलसल अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया, जिस पर फारूक इशनाइक ने कहा कि आइंदा समाअत पर साबिक सदर पेश हो जाएंगे। ताहम अदालत ने आसिफ जरदारी को पेश होने का मौका देते हुए काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब ने बताया कि नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से भाग रहे हैं। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी बरतानिया भेजे, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे। अदालत ने नवाज शरीफ की तलबी के लिए इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान को 17 अगस्त को तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में विफाकी और सूबाई हुकूमत, पाक आर्मी और एफसी बलोचिस्तान की जानिब से टिड्डी दल के खिलाफ फ़ज़ाई और ज़मीनी ऑपरेशन भरपूर तरीके से जारी है, जिसमें पाक फौज और एफसी बलोचिस्तान के जहाज और हेलीकॉप्टर भी फ़ज़ाई स्प्रे में हिस्सा ले रहे हैं। बलूचिस्तान के जमींदारों और किसानों ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से टिड्डी दल के हवाले से इक़दामात को भरपूर अंदाज में सराहा है। टिड्डी दल के खात्मे के लिए महकमा ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, ज़राअत और पाक फौज की मुश्तरका टीमें मुतासरा इलाकों में सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन कर रही हैं। NLCC के मुताबिक मुल्क भर में 22 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। 41 अज़ला के मुतासरा इलाकों में 972 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुल्क भर में 15.9 करोड़ एकड़ पर सर्वे किया जा चुका है। सूबा पंजाब में पिछले 24 घंटों में 2,55,754 एकड़ पर सर्वे किया गया। 3 अज़ला में 1,952 एकड़ पर ऑपरेशन किया गया। सूबा सिंध में 91,181 एकड़ रकबे पर और 8 अज़ला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 4,356 एकड़ पर ऑपरेशन किया गया। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 2 लाख से ज्यादा एकड़ पर सर्वे किया गया। 4 अज़ला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 874 एकड़ पर ऑपरेशन किया गया। सूबा बलोचिस्तान में पिछले 24 घंटे में 3,72,000 से ज्यादा एकड़ पर सर्वे किया गया। 26 अज़ला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 7,279 एकड़ पर ऑपरेशन किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम शाम रात खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली मशरकी बलोचिस्तान, बालाई वस्ती पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान कराची समेत सूबा सिंध के साहिली पट्टी में बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। ताहम शिमाल मशरकी पंजाब, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश जोब 11, कसूर 9, बारखान 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और अब तक सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मंजोदड़ो 47, दादू 46, नौकुंडी, दालबंदीन, सिब्बी और शहीद बेंजीराबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। Here we go.
खेलों की खबरों में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करते हैं दौरा इंग्लैंड के लिए वुस्टरशायर में मौजूद कौमी क्रिकेट स्क्वाड की कोविड-19 टेस्टिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। स्क्वाड में शामिल 20 खिलाड़ियों और 12 टीम ऑफिशियल्स के टेस्ट इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल ने लिए। पाकिस्तान से इंग्लैंड रवाना होने वाले स्क्वाड के अलावा बॉलिंग कोच वकार यूनुस का भी टेस्ट किया गया। वकार यूनुस ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड पहुंचे हैं। स्क्वाड और ऑफिशियल्स के मरहलावार कोरोना टेस्टिंग का अमल इंग्लैंड टूर मुकम्मल होने तक जारी रहेगा। कौमी क्रिकेटर्स करंटीना में स्नूकर, टेबल टेनिस और वीडियो गेम्स से महजूज होने लगे हैं। इंग्लैंड के दौरे पर मौजूद कौमी क्रिकेट टीम को वुस्टरशायर में कोविड-19 प्रोटोकॉल और तरबियती प्लान के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। डायरेक्टर मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेज डॉक्टर सुहेल सलीम और टेस्ट कप्तान अजहर अली ने खिलाड़ियों को ब्रीफिंग दी। कौमी टीम 14 रोज तक करंटीना में वक्त गुजारने के बाद 13 जुलाई को डर्बी शायर रवाना होगी, जहां खिलाड़ी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अगस्त और सितंबर में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज शेड्यूल है। नाज़रीन, कोविड-19 का टेस्ट दूसरी मरतबा मनफी आने पर 6 खिलाड़ी वुस्टरशायर में स्क्वाड को ज्वाइन करने के अहल करार दे दिए गए हैं। फखर जमान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और वहाब रियाज के 3 रोज में 2 मरतबा टेस्ट मनफी आ गए हैं, जिसके बाद ये तमाम खिलाड़ी वुस्टरशायर में कौमी क्रिकेट टीम को ज्वाइन करने के अहल हैं। पीसीबी ने खिलाड़ियों के सफर के इंतजामात का आगाज कर दिया है और इस हवाले से रवानगी की तफसीलात जल्द जारी कर दी जाएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। कौमी क्रिकेट टीम के फिजियो क्लिफ डेकन ने वुस्टरशायर में स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। बाएं हाथ के स्पिनर जफर गोहर ने भी सीरीज से कबल तैयारियों के लिए स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। क्लिफ डेकन और जफर गोहर के कोविड-19 टेस्ट लिए गए। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की हिदायत के मुताबिक कोविड-19 टेस्ट के नताइज के बाद ही कौमी क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग की इजाजत होगी। स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान की कोविड-19 टेस्टिंग के नताइज मंगल को मुतवक्के हैं। आईसीसी एलीट एम्पायर्स पैनल्स में पाकिस्तान के मायानाज एम्पायर अलीम डार बरकरार हैं। 2020-21 सीजन के लिए भारत के नेतन मेनन भी एलीट पैनल में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। भारतीय ऑफिशियल नेतन मेनन इंग्लैंड के नाइजल लोंग की जगह संभालेंगे। 36 साल मेनन एलीट पैनल के सबसे जवान एम्पायर होंगे। मेनन इससे कबल इंटरनेशनल पैनल का हिस्सा थे। नए सीजन के लिए एलीट एम्पायर्स पैनल में अलीम डार बदस्तूर मौजूद हैं। इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में कप्तानी के लिए तैयार हैं। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट दूसरे बच्चे के बाप बनने वाले हैं और बायो बबल से निकलने की वजह से रूट को वापसी पर 6 दिन के लिए आइसोलेशन इख्तियार करना पड़ेगी, जिसके बायस पहले टेस्ट के आगाज तक इनके दस्तयाब होने का इम्कान बहुत कम है। इनकी गैर मौजूदगी में बेन स्टोक्स टीम की क़यादत संभालेंगे। बेन स्टोक्स का कहना है कि अगरचे उन्होंने कप्तानी की कभी ख्वाहिश नहीं की, लेकिन कैरियर में एक बार भी कौमी टीम की क़यादत करना इनके लिए बहुत ही एजाज़ की बात है। नस्ल परस्ती का शिकार होने वालों के साथ इजहार यकजहती के लिए वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान ब्लैक लाइव्स मैटर लोगो वाली शर्ट्स पहनेंगे। आईसीसी ने भी इस हवाले से मंजूरी दी है। कैरेबियन साइड के कप्तान जेसन होल्डर ने अपने दौरे की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नस्ली मुनाफरत का मुजाहरा करने वाले क्रिकेटर्स को भी डोपिंग और मैच फिक्सिंग में मुलव्विस खिलाड़ियों जैसी सख्त सजा देना चाहिए। स्पोर्ट्स डेस्क से अब तक के लिए इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया शफीक और नासिन। खेलों की इन खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। समीन हराना और अली जन्नत को न्यूज टीम के हमरा इजाजत दीजिएगा। किसी भी खबर की तफसील जाननी हो तो विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के हवालों तक पहुंचा सकती है और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के समरात अवाम तक पहुंचाना इन नुमाइंदों का फर्ज है।
इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे ये सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, अवाम से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। शेर दिल मसीहाओ, सी रहे हो सब खाओ, तुम हमारे मोहसिन हो। जानलेवा दुश्मन से लड़ रहे हो तुम तन्हा, रात हो भले दिन हो, तुम हमारे मोहसिन हो। शेर दिल मसीहाओ, भूल कर तुम अपने गम और दुख अजीजों के पास हो मरीजों के। तुम हमारे चारागर, दर्द की दवा हो तुम, खौफ की शिफा हो तुम, अमन की क़बा हो तुम, चैन की रिदा हो तुम। हम दुआएं करते हैं तुम बहुत जज़ा पाओ, शेर दिल मसीहाओ। सर पे तुम कफन बांधे लड़ रहे हो सबकी जंग, और सब महाजों में सबसे आगे तुम ही हो। तोप है न कोई तीर, लड़ रहे हो बेशमशीर। तुम हमारा लश्कर हो, तुम निशान हैदर हो। रब करे लड़ाई में कामयाब हो जाओ, शेर दिल मसीहाओ। देश के जवां बेटो, जोश कम न होने दो। सारे दर्दमंदों को, सब खुदा के बंदों को दर्द की दवा बांटो, कौम को न रोने दो। तुम हमारे हीरो हो, आने वाली नस्लें सब तुमको याद रखेंगी। इश्क के निसाबों में, देश की किताबों में आएगा तुम्हारा नाम, क्योंकि तुमने हम सब की जिंदगी बचाई थी। मौत के दहाने से, रात के फसाने से रोशनी दिखाई थी। ताबत जजा पाओ, शेर दिल मसीहाओ, शेर दिल मसीहाओ। वक्त के साथ बदलते हालात और बढ़ते मईशत पर सम्राट, करने को है आप कोई नया कारोबार या फिर बिजनेस में वुसअत का आगाज। अगर नहीं है मालूम बिजनेस डायमेंशन, तो हम देंगे आपको ऐसी राय जो होगी सूझबूझ। डालेंगे रोशनी खतरे के हर पहलू पर, दिखाएंगे तस्वीर का हर रुख। ला रहे हैं आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें होंगे जदीद आइडियाज, मैनेजिंग कैश फ्लो, कमोडिटी मार्केट के अप एंड डाउन, बिजनेस एक्सचेंज और उन पर मुकम्मल टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपसे होगी आप ही की बात माहिरीन के साथ। लेट्स टॉक इन दिस टॉक। देखिए हर सोमवार से जुमा 5:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। शाम की शहजादी की शादी बहुत अहमियत की हामिल है बंदूक। उन्होंने ऐलान किया है कि शहजादी से होने वाली औलाद ही तख्त की वारिस होगी। तुम ये काम खत्म करके यहूदा के साथ जाकर आर्तुरुल को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दो। मुझे इल्म है कि यही दुख मुझे हकीकी फतह की तरफ लेकर जाएगा। अब अगर कोई चचा पे शक करेगा या उनके खिलाफ बात करेगा तो मुझे भी अपना मुखालिफ पाएगा। कुर्तुगलू और उसकी हवारी मुझे सरदारी से हटाना चाहते हैं और बंदूकदू को सरदार बनाना चाहते हैं। तुम्हें और किस पर शक है? कुर्तुगलू। ये मंजरनामा है, मंजरनामा। यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं,
کل کے حریف آج کے ساتھی، کل ہوں ساتھی تو آج حریف۔ کہتے ہیں سیاست میں کچھ حرف آخر نہیں، لیکن کیا یہ بدلتے منظرنامے ملک و قوم کے لیے بھی مفید ہیں؟ عوام کو کرپشن سے نجات، انصاف اور اچھے معیار زندگی دیتے ہیں؟ اب رہے کہ تمام بدلتے حالات اور واقعات پر نظر، ہوں گے بے باک سوالات اور پوچھیں گے آپ سے کیا بدلی آپ کی رائے؟ بدلتی رائے دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 7:05 پر صرف PTV نیوز پر۔ پریوں کلیوں کی آبادی، جنت ہے کشمیر کی وادی۔ اس وادی کے طول و عرض میں سبز چراگاہوں کی خوشبو لہراتی ہے، پھولوں اور رنگوں کی آہٹ میلوں دور سے سن جاتی ہے۔ اس کی ایک جھلک ہی روح کو مہکاتی ہے۔ یہاں تو شب بھر میاں محمد بخش کے دل پر شیر چمکتے ہیں، دیوانے جگنو بن کر۔ سیف ملوک ہر دل میں جاگے خوشبو بن کر۔ جھیلیں اس مونی وادی کی سبز آنکھیں ہیں، نیلم جیلم اور چناب کے بہتے دریا رگیں ہیں اس کی۔ جھرنے اس کی آوازیں ہیں، سر والے جن کو سنتے ہیں گر والے بھی سر دھنتے ہیں۔ ان دریاؤں کے البیلے مائیے ٹپے ایسے میٹھے جیسے پھولے گالوں والے دو بچے کشمیری بولے، حسن کے بند دریچے کھولے۔ برف کی شالیں اوڑے پیر پنجال کی وادی، جس کی تیز ہواؤں میں مچلے آزادی، جس کے جھرنے نظمیں اور غزلیں کہتے ہیں اور حنا کی خوشبو لہراتے رہتے ہیں۔ خوشبو کے ہلکورے لیتے گرما گرم اور خستہ یہ کشمیری کلچے، تازہ ساگ اور مکی کی روٹی کے خوشبودار نوالے، بچپن کے یاروں کی صورت دل میں یوں گھر کر جاتے ہیں، دھڑکن دھڑکن لہراتے ہیں۔ جاڑے اور برفیلے موسم سے کچھ پہلے بکر والوں کے کچھ کنبے اپنی بھیڑوں کے جھرمٹ میں چلتے چلتے باسریا کی میٹھی تانے لہراتے ہیں۔ سرف چناروں کی یہ دھرتی، مست نظاروں کی یہ دھرتی، شاہ بلوط کی اس وادی پہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، خاک کے اس قرے پر جنت اگر کہیں ہے، صرف یہی ہے، صرف یہی ہے، صرف یہی ہے۔ یارو یہ وادی جنت ہے، اور جنت تو ہر اہل ایمان کا دل ہے، اور یہ خطہ پورے پاکستان کا دل ہے۔ پاکستان کے ہر خطے کی الگ ہے خوشبو، جدا ہے رنگت، ہر خطے کے نرالے جذبے، نئی محبت، ہستا بستا یہ گلدستہ ایک تحفہ ہے۔ یہ الفت ہے، یہ رحمت ہے، یہ عزت